بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 5 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں کاروان دہشت، مصنف مظہر کلیم MA، آواز ہیرا مجید کی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960، واٹس ایپ نمبر 033324955373 پر محمد اظہر لطیف سے۔ سامعین، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 5 صفحہ نمبر 87 سے۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے ہوٹل سلازار کے کمپاؤنڈ میں کار موڑ دی۔ ہوٹل کی عمارت واقعی خاصی خوبصورت اور جدید انداز کی تھی۔ کار روک کر عمران نیچے اترا اور پارکنگ کارڈ لے کر وہ آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی نظر ایک طرف کھڑی صفدر کی کار پر پڑی اور وہ سر ہلاتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کار دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں ہال میں موجود ہوں گے، اور اس نے سوچا تھا کہ آج وہ انہیں اتنا تنگ کرے گا کہ آئندہ وہ ہوٹل گردی بھول جائیں گے۔ مین گیٹ میں داخل ہوتے ہی عمران نے سرچ لائٹ کے سے اندازے میں نظریں گھماتے ہوئے ہال کا جائزہ لیا۔ ہال میں اس وقت بہت کم لوگ موجود تھے، بیشتر میزیں خالی پڑی تھی، لیکن صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں اس سے کہیں نظر نہ آئے۔ تشریف لائیے جناب، ایک ویٹر نے اسے گیٹ کے سامنے کھڑے دیکھ کر بڑے مہذب انداز میں کہا۔ کہاں سے لے آؤں؟ جیب میں تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے اور ادھر تشریف کوئی دیتا نہیں ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، جی میرا مطلب ہے میز پر تشریف رکھیے۔ ویٹر نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا، میز پر تشریف رکھوں؟ اور بھائی، تشریف کسی لیڈیز پرس کا نام تو نہیں ہے، تو میں تو کسی سبزی کا نام سمجھا تھا۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں کہہ رہا ہوں بیٹھیے۔ ویٹر نے اس بار جھنجھلاتے ہوئے کہا، اچھا بھائی، اچھا، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ بیٹھ جاتا ہوں۔ بیٹھ جانے میں کون سا ٹیکس لگتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر بجائے کسی میز کی طرف بڑھنے کے وہ لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جی میزیں ادھر ہیں، ویٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی مجھے نظر آ رہا ہے، گو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مجھے آتشی شیشوں والی اینک پہننی چاہیے، مگر میں سوچتا ہوں کہ جیتے جی ہی آتش منہ پر آ گئی تو زندگی کا کیا مزہ۔ عمران نے مڑ کر کہا اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتا لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور ویٹر حیرت سے اسے زیادہ دیکھتا رہا۔ اس کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ اسے عمران کی ٹائپ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن چونکہ بطور ویٹر اسے ہر گاہک کے ساتھ ادب سے پیش آنا ضروری تھا، اس لیے وہ خاموش رہ گیا اور عمران لفٹ میں سوار ہو گیا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل کو حال میں موجود نہ پا کر عمران نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ براہ راست اس پار کو اس کے کمرے میں ہی چیک کرے گا۔ چوتھی منزل پر پہنچ کر وہ جیسے ہی کمرہ نمبر 12 کی طرف بڑھا، قریب ہی موجود ایک ویٹر نے تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ صاحب، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ویٹر نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ 1 درجن کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ 1 درجن کمرے میں؟ یعنی آپ بیک وقت 12 کمروں میں جائیں گے؟ ویٹر نے عمران کو یوں سر سے لے کر پاؤں تک گھورا جیسے وہ انسان کے بجائے کوئی نافوق الفطرت چھ ہو۔ ہاں بیک وقت، عمران نے کہا اور پھر قدم بڑھا کر وہ کمرہ نمبر 12 کے سامنے پہنچ گیا۔ اچھا، تو آپ کا مطلب ہے نمبر 12؟ ویٹر نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو شکر ہے، تم میرا مطلب تو سمجھ گئے۔ عمران نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، سر 2 آدمی کافی دیر پہلے اس کمرے میں دستک دے کر گئے تھے، لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور کوئی آرڈر نہ آیا تو اس میں سے دستک دے کر آرڈر پوچھا، جس پر راب فلیٹ صاحب بے حد ناراض ہوئے۔ ویٹر نے یوں کہا جیسے اس کے ساتھ کوئی بہت برا واقعہ ہو گیا ہو سکتا ہے وہ آرڈر نہ دینا چاہتے ہو۔ عمران نے 2 آدمیوں کا سن کر اس بار اور زیادہ زور سے دستک دی، لیکن اندر مکمل خاموشی تھی۔ عمران نے چند لمحے انتظار کرنے کے بعد ہینڈل گھمایا، لیکن دروازہ اندر سے لاک تھا۔ ویٹر، جاؤ مینیجر کو بلا لاؤ اور ساتھ ہی ماسٹر کی بھی لے آؤ، اندر گڑبڑ ہے۔ عمران نے سخت لہجے میں ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ گڑبڑ؟ کیسی گڑبڑ؟ ویٹر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، وہی گڑبڑ جو پیٹ میں ہوتی ہے بدہضمی کے وقت۔ جاؤ جلدی، وقت ضائع مت کرو، عمران نے اس بار اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور ویٹر سر ہلاتا ہوا تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ویٹر کے جاتے ہی عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پتلی سی تار نکال کر اس کو موڑا
اس کا مڑا ہوا سرا لاک کے سوراخ میں ڈالا اور اسے مخصوص انداز میں دائیں بائیں گھمانے لگا. چند لمحوں بعد ہی ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی اور عمران نے ہینڈل دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور عمران تان نکال کر تیزی سے اندر داخل ہوا. کمرہ خالی پڑا ہوا تھا جبکہ پچھلی کھڑکی کھلی ہوئی تھی. قالین پر خون کے چھوٹے چھوٹے دھبے صاف نظر آ رہے تھے. عمران نے کمرے میں ایک نظر ڈالی اور پھر وہ تیزی سے غسل خانے کی طرف بڑھا. اس نے غسل خانے کا دروازہ جیسے ہی کھولا وہ بری طرح اچھل پڑا کیونکہ غسل خانے میں صفدر اور کیپٹن شکیل پڑے ہوئے تھے. عمران نے تیزی سے دونوں ہاتھوں میں ان دونوں کی کلائیاں تھام لی. دوسرے لمحے اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار ابھر آئے. صفدر اور کیپٹن شکیل صرف بے ہوش تھے. عمران نے ان کی آنکھ کھول کر دیکھی اور پھر وہ ان کی ناک پر جھک گیا. دوسرے لمحے وہ ایک طویل سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. اس نے زود اثر بے ہوش کر دینے والی گیس کی ہلکی سی بو سونگھ لی تھی. اسی لمحے ایک نوجوان ویٹر کے ساتھ اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر بھوکلاہٹ کے آثار نمایاں تھے اور پھر غسل خانے میں پڑے ہوئے صفدر اور کیپٹن شکیل کو دیکھ کر اس کا رنگ زرد ہو گیا. یہ کون ہے؟ کیا مر گئے؟ نوجوان نے بھوکلائے ہوئے لہجے میں کہا. نہیں صرف بے ہوش ہیں. تم ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی. عمران کے سخت لہجے میں جواب دیا. جاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی کرو. نوجوان نے قریب کھڑے ہوئے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا اور ویٹر سہلاتا ہوا تیزی سے مڑا اور بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا. مسٹر راک فیلڈ کہاں ہیں؟ مینیجر نے غسل خانے کے دروازے سے نکل کر کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا. اب اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا. کسی پہاڑ پر نصب ہو گئے ہوں گے. عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. پہاڑ پر؟ کیا مطلب؟ مینیجر نے اس بار قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا. ظاہر ہے راک چٹان کو کہتے ہیں اور فلیٹ میدان کو. چٹانوں کا میدان پہاڑی ہی ہو سکتا ہے نا. تم نے تو جلدی تمہارا ویٹر ہی مطلب سمجھ لیتا. عمران نے جواب دیا. مگر آپ کون ہیں؟ آپ نے یہ کمرہ کیسے کھولا؟ اچانک مینیجر کو خیال آ گیا. عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر ایک کارڈ نکال کر مینیجر کے ہاتھ میں دے دیا. مینیجر کی نظر جیسے ہی کارڈ پر پڑی وہ حیرت سے اچھل پڑا. وہ آپ کا تعلق اینٹیجن سے ہے؟ سوری مگر آپ یہاں؟ مینیجر نے بھوکلائے ہوئے لہجے میں کہا. کارڈ سینٹرل انٹیلیجنس کے چیف ڈائریکٹر کا تھا. تم مشکوک افراد کو ہوٹل میں ٹھہراتے ہو اور نتیجہ دیکھ لیا. کارکن اس راک فلیٹ کا جائزہ لینے آئے تو وہ انہیں بے ہوش کر کے کھڑکی کے راستے فرار ہو گیا. عمران نے کارڈ واپس لیتے ہوئے سخت لہجے میں کہا. ویری سوری سر. آپ ہمیں کیا پتا کہ وہ غلط آدمی ہے مگر پچھلی کھڑکی سے تو گلی بہت نیچے ہے. مینیجر نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا. نیچے ہے تو اونچی بھی ہو سکتی ہے. عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر اس نے پہلے کہ مینیجر کوئی اور بات کرتا ویٹر ڈاکٹر کو ہمراہ کمرے میں داخل ہو گیا. یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ایمرجنسی بیگ تھا. انہیں ویلیم 3 کے انجیکشن لگاؤ ڈاکٹر. عمران نے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا. ویلیم 3؟ ڈاکٹر نے چونکتے ہوئے کہا اور پھر اس نے صفدر کی آنکھ کھول کر دیکھی تو دوسرے لمحے اس بات میں سہلانے لگا. پھر اس نے پھرتی سے بیگ کھولا اور انجیکشن تیار کرنے لگا. عمران اس دوران غسل خانے سے نکل کر کمرے میں گھومنے لگا. اس کی تیز نظریں ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی. پھر اس نے الماری کھولی اور اس کا بغور جائزہ لینے لگا لیکن الماری مکمل طور پر خالی پڑی تھی. کاغذ کا ایک پرزہ تک بھی موجود نہ تھا. اور پھر عمران الماری بند کر کے واپس غسل خانے میں آ گیا. ڈاکٹر ان دونوں کو انجیکشن لگا کر بیگ بند کر رہا تھا. عمران جانتا تھا کہ 2 منٹ بعد ہی یہ دونوں ہوش میں آ جائیں گے اور وہی ہوا. 2 منٹ بعد ہی ان دونوں نے آنکھیں کھول دی. کیا زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ اب غسل خانے کو خوابگاہ سمجھ لیتے ہیں. عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا اور اس کی آواز نے ان دونوں کے شعور کو ایک جھٹکے سے جھنجھوڑ دیا اور وہ دونوں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑ بیٹھ گئے. آپ؟ صفدر کے منہ سے نکلا. ڈاکٹر اس کے چہرے کی بینڈیج بھی کر دو. بیچارہ حسینوں میں شمار ہوتا تھا. عمران نے صفدر کے گال پر موجود زخم کو دیکھتے ہوئے کہا اور صفدر نے بھی بے اختیار گال پر ہاتھ پھیرا. ڈاکٹر نے ایک بار پھر بیگ کھولنا شروع کر دیا. کیپٹن شکیل اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس کی آنکھوں میں مزاحمت کے آثار موجود تھے. سر کیا پولیس کو اطلاع دینی ہے؟ اچانک مینیجر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا. پولیس کو؟ کیا پولیس ہمارے محکمے سے بڑی ہے؟ عمران نے تلخ لہجے میں پوچھا. سر نہیں وہ میں تو مینیجر عمران کے لہجے سے گڑبڑا گیا. آئندہ یہ لفظ میرے سامنے نہ لینا. عمران نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا. ظاہر ہے وہ پولیس کو بلانے کے حق میں کیسے کہہ سکتا تھا. اس لیے اس نے سخت لہجے میں استعمال کیا تاکہ مینیجر اس لائن پر سوچے بھی نہ.
सफदर भी बैंडेज करा चुका था, इसलिए वो भी उठकर खड़ा हो गया था। आओ मेरे साथ। अच्छा इजाजत। और सुनो मैनेजर, किसी को इस वाकये का पता ना चले, ये सरकारी राज है, इमरान ने चलते चलते मैनेजर से कहा, और मैनेजर ने इस बात में सही ला दिया। इमरान, सफदर और कैप्टन शकील को हमरा लिए फ्लैट की तरफ बढ़ता चला गया। हॉल से बाहर निकलकर वो जैसे ही पार्किंग में पहुंचे, इमरान ने इन दोनों से मुखातिब होते हुए कहा, हाँ अब बताओ गुसल खाना कैसे पसंद आ गया? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर सफदर ने शुरू से लेकर आखिरी तक तमाम तफसीलात सुना दी। लेकिन वो तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ गया? मुझे तो इस बात पर हैरत है, इमरान ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। वैसे इमरान साहब, वो इस फितरत का आदमी तो नहीं है कि हाथ आए शिकार को छोड़ दे। हो सकता है कोई ऐसी मुदाखलत हुई हो जिसकी वजह से उसे भागना पड़ गया हो। कैप्टन शकील ने कहा, ओह हाँ ठीक है, फिर तुम्हें इस वेटर का मशकूर होना चाहिए। वो वाहिद आदमी है जिसने ऑर्डर लेने के लिए मुदाखलत की थी, इमरान ने चौंकते हुए कहा। अब हमें एक्स्ट्रा को रिपोर्ट देनी होगी, सफदर ने मौजू बदलते हुए कहा, और वो दिल ही दिल में अपने आप को चोट महसूस कर रहा था। लेकिन इसने एक्स्ट्रो के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए स्पार्क को अगवा करने का फैसला किया था। वो इसे मालूम था कि एक्स्ट्रो इसे हुक्म अदलवी की इबरतनाक सजा देगा, और उसे मालूम था कि एक्स्ट्रो इसके हुक्म अदूली की इबरतनाक सजा देगा। नहीं, उसे रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, वरना वो खामखा तुम पर चढ़ दौड़ेगा कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के 2 मेंबर के जीबी के एक मेंबर से मार खा गए। मैं खुद इसे संभाल लूंगा, इमरान ने कहा मुस्कुराते हुए कहा, और सफदर और कैप्टन शकील दोनों ने सर झुका लिए। इमरान मुस्कुराता हुआ वापस अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। अब इसका इरादा दानिश मंजिल आने का था, ताकि वहां बैठकर इस पार की इस मुल्क में आमद के साथ साथ सदर मुमलिकत की हिदायत के मुताबिक इस मीटिंग की तफसीलात हासिल करने के बारे में भी कोई वाज़ेह प्रोग्राम बना सके। सफदर और कैप्टन शकील भी अपनी कार में बैठकर वापस आ गए। टाइगर ने मोटरसाइकिल पार्किंग से बाहर निकाली। इसका इरादा आज एक पुराने दोस्त से मिलने का था जो सब्ज झील के पार वाले रिहायशी इलाके में रहता था। गुज़िश्ता दिनों में इसने एक महफिल में अचानक मुलाकात हो गई थी, और इसने बताया था कि आजकल वो दफ्तर से छुट्टियों पर है, इसलिए घर पर ही होता है। इसलिए टाइगर इनके घर आ जाए तो वो बच्चों के साथ मिलकर पिकनिक का मंसूबा बनाए। टाइगर भी काफी अरसे से फारिग था, इसलिए इसने सोचा कि चलो इसी बहाने छोटे बच्चों के साथ मिलकर कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मोटरसाइकिल इसने होटल के कंपाउंड से बाहर निकाली और तेजी से सड़क पर आगे बढ़ता चला गया। 6 यूनियो के चौक पर पहुंचकर वो बाएं तरफ मुड़ गया। ये सड़क एक रिहायशी इलाके के दरमियान से गुजरकर सब्ज झील वाली सड़क से जा मिलती थी, और इस तरह रास्ता ना सिर्फ मुख्तसर हो जाता था, बल्कि एक सड़क पर ट्रैफिक भी ना होता। मेन सड़कों पर इस वक्त बेपनाह रश था, क्योंकि 10:30 बजे थे और सुबह का भी वक्त था, और ये वक्त ऐसा होता है कि जब सड़कों पर ट्रैफिक अपने उरूज पर होता है। टाइगर रिहायशी इलाके में से गुजरता आगे बढ़ता चला जा रहा था कि अचानक उसे दूर से एक कोठी की दीवार के पास एक कार उल्टी हुई नजर आई। इसके गिर्द 2 कारें मौजूद थीं, और जब टाइगर की नजर पड़ी तो इसी वक्त दोनों कारें तेजी से स्टार्ट हुई और मुड़कर मुखालिफ सिमत में दौड़ती चली गईं। टाइगर वहां से काफी फासले पर था, लेकिन इस तरह कारों के दौड़ने से वो मशकूक हो गया। इसने मोटरसाइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी, और जो चंद ही लम्हों बाद वो उल्टी हुई कार के करीब पहुंच गया। कार पर लहराता हुआ फ्लैग बता रहा था कि सरकारी है। टाइगर ने तेजी से मोटरसाइकिल स्टैंड किया और फिर कार की तरफ बढ़ गया। कार के एक टायर के परखचे उड़े हुए थे, जिसके साफ जाहिर हो रहा था कि कार का टायर पहले ब्रस्ट किया गया है। टाइगर ने झुककर कार के अंदरूनी हिस्से का जायजा लिया और दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा। कार में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था, जिसका जिस्म स्टीयरिंग पर झुका हुआ था और इसकी खोपड़ी पुर्जों में तकसीम होकर सीट पर और इर्द गिर्द फैली हुई थी। और फिर इसी लम्हे इसकी नजर आगे वाली सीट के नीचे पड़ी हुई एक छोटी सी डिबिया पर पड़ गई। ये माइक्रो टेप की डिबिया थी, जिसमें मौजूद टेप भी नजर आ रही थी। टाइगर ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर वो टेप उठाई, इसे एक लम्हे के लिए देखा और फिर जेब में डाल लिया, और फिर वो सीधा होना ही चाहता था कि इसकी नजरें सीट के मुखालिफ कोने में अटकी हुई एक चीज पर पड़ गई, जिसका मामूली सा कोना सीट के दर से बाहर निकल रहा था। ये बटवा सा लगता था। टाइगर ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया और उसे खींच लिया। ये पतला सा बटवा था जो सीट के
कार की दरमियानी दर्ज में घुसा हुआ था। टाइगर ने एक लम्हे के लिए बटुआ खोला और दूसरे लम्हे और बुरी तरह उछल पड़ा। ये बटुआ सर सुल्तान का था। इसका सरकारी कार्ड इसमें मौजूद था और दूसरे लम्हे सूरत हाल टाइगर पर वाज़ेह हो गई। मुजरिमों ने सर सुल्तान की कार उल्टाई और ड्राइवर को गोली मारकर सर सुल्तान को अगवा करके ले गए। कार पर मौजूद फ्लैग से भी यही जाहिर होता था कि सर सुल्तान इसमें मौजूद थे, वरना आम हालत में फ्लैग को कानूनन लिपेट दिया जाता। टाइगर ने फुर्ती से बटुआ जेब में डाला और दूसरे लम्हे इसने मोटरसाइकिल को किक लगाई और उसे आगे दौड़ाता चला गया। इतने बड़े हादसे के बावजूद वहां अभी तक कोई न आया था। जाहिर है वहां लोग किसी चक्कर में फंसना ना चाहते थे और हो सकता था कि किसी ने सिर्फ पुलिस को फोन कर दिया हो और पुलिस के पहुंचने से पहले जाए हादसा के करीब ना आना चाहते हो। बहरहाल टाइगर के अलावा और कोई वहां मौजूद ना था, इसलिए टाइगर को किसी ने रोकने की भी कोशिश न की और टाइगर तेजी से मोटरसाइकिल दौड़ता चला गया। मामला बेहद अहम और सीरियस था, इसलिए वो जल्द अज जल्द इमरान को इसकी इत्तला देना चाहता था और फिर 2-3 मील आगे बढ़ने के बाद वो एक मार्केट के करीब पहुंच गया जहां पब्लिक फोन बूथ मौजूद था। टाइगर ने फोन बूथ के बाहर मोटरसाइकिल रोका और फिर वो हत्तुल वसी तेजी से फोन बूथ में दाखिल हो गया। सिक्के डालकर इसने रिसीवर उठाया और इमरान के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जल्द ही राब्ता हो गया। ऑल वर्ल्ड बावर्ची एसोसिएशन का मरकजी सदर इज्जत माब सुलेमान पाशा बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज सुनाई दी और टाइगर के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहटें दौड़ गईं। जनाब सदर, जनाब माब सुलेमान पाशा साहब, इमरान साहब फ्लैट में मौजूद हैं। टाइगर ने बड़ी संजीदा लहजे में कहा, फ्लैट में वो क्या होता है? ये एक मरकजी दफ्तर ऑल वर्ल्ड बावर्ची एसोसिएशन है। सुलेमान ने दोबारा वजाहत करते हुए कहा, ओह सॉरी, मरकजी दफ्तर में। टाइगर ने जल्दी से कहा, नहीं, इन्हें अंग्रेजी में निकाल दिया गया है, यानी गेट आउट कर दिया गया है। सुलेमान ने जवाब दिया और टाइगर ने बगैर कोई मजीद बात किए क्रेडर बंद कर दिया। रिसीवर हुक में लटकाकर इसने दोबारा जेब में हाथ डालकर मजीद सिक्के निकाले और इन्हें खाने में डालकर इसने रिसीवर दोबारा उठाया और इस बार इसने दानिश मंजिल के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। एक्सटो। चंद लम्हों बाद ही दूसरी तरफ से एक्सटो की मखसूस आवाज भरी, सर, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। इमरान साहब के फ्लैट पर फोन किया था मगर वो वहाँ मौजूद नहीं है। टाइगर ने तेजी से लहजे में वजाहत करते हुए कहा, क्योंकि इमरान की हिदायत थी कि वो हत्तुल वसी दानिश मंजिल फोन ना किया करे। क्या बात है? एक्सटो ने सर्द लहजे में पूछा। जनाब, जहाँ तक मेरा अंदाजा है सर सुल्तान को अगवा कर लिया गया है। मुजरिमों ने इनकी कार का टायर ब्रस्ट किया और जब कार उलट गई तो वो इन्हें दूसरी कार में अगवा करके ले गए। टाइगर ने जवाब दिया। फिर? एक्सटो ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा और टाइगर की आंखें हैरत से फटती चली गईं। इसका ख्याल था कि ये खबर सुनकर एक्सटो उछलेगा नहीं तो कम से कम चौंक पड़ेगा, लेकिन इसके लहजे में तो यूं महसूस हो रहा था जैसे सर सुल्तान का अगवा कोई मामूली सी कार्रवाई हो। फिर जनाब, इसकी इत्तला देने के लिए मैंने इमरान साहब को फोन किया था। टाइगर ने जवाब दिया। ये वाकया कहाँ हुआ और तुम इस वक्त कहाँ थे? एक्सटो ने पूछा और फिर जवाब में टाइगर ने पूरी तफसील बता दी। इसने बटुआ लेने वाली बात भी तो बताती, लेकिन माइक्रोटेप की बात वो छिपा गया क्योंकि इसके ख्याल के मुताबिक हो सकता है कि इसकी कोई अहमियत ना हो, इसलिए इसने ये टेप इमरान के हवाले करने का फैसला कर लिया था। कारों की तफसील एक्सटो ने पूछा। जनाब, कारें दूर थी इसलिए मैं इन्हें पहचान नहीं सका। टाइगर ने जवाब दिया। इस सिलसिले में भी उसे एक बात ऐसी मालूम थी जो वो बताना चाहता था, लेकिन एक्सट्रो का सर्द रवैया देखकर उसे भी गुस्सा आ गया था कि जब उसे ही परवाह नहीं है तो वो खामखा तफसीलात बताता फिरे। ओके, तो तुम वापस अपने होटल जाओ। इमरान से कनेक्ट हो गया तो मैं उसे इत्तला कर दूंगा, वो तुमसे खुद ही राब्ता कायम करेगा। एक्सट्रो ने इसी तरह स्पॉट लेजे में जवाब दिया। बेहतर सर, टाइगर ने जवाब दिया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया और टाइगर रिसीवर हुक में लटकाकर फोन बूथ से बाहर निकल आया। जाहिर है इसी वाकये के बाद अब इसका दोस्त के घर जाना तो फजूल था, इसलिए इसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वो अपने होटल की तरफ बढ़ता चला गया। इस बार टाइगर ने जानबूझकर वापस इसी सड़क पर जाने के बजाय जहां हादसा हुआ था और सर सुल्तान की गाड़ी उल्टी पड़ी थी, आगे वाले चौक से चक्कर काट कर वो एक लंबे रास्ते से वापस होटल की तरफ मोटरसाइकिल दौड़ाता चला गया, क्योंकि हो सकता था कि अब तक पुलिस से जाए हादसा पर पहुंच गई हो और किसी ने उसे मोटरसाइकिल पर चेक कर लिया हो। इस तरह एक और परेशानी में फंस जाए। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो वापस अपने होटल के कंपाउंडर में पहुंच गया। इसने अपनी मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और फिर होटल के अंदर हाल से होता हुआ लिफ्ट के जरिए अपने कमरे में पहुंच गया और फिर इसके साथ कमरे में पहुंचते ही टेलीफोन की घंटी बज उठी।
यस, टाइगर ने रिसीवर उठाते हुए कहा। इमरान बोल रहा हूँ, तुम कमरे में रहो, मैं वहीं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज सुनाई दी। इसका लहजा बेहद संजीदा था। बेहतर जनाब, टाइगर ने मौजबाना लहजे में जवाब दिया और इमरान ने दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया। माइक्रो ने भी टाइगर ने भी रिसीवर रख दिया और फिर उठकर इसने कमरे के दरवाजे की ऊपर वाली चुटखड़ी चढ़ा दी ताकि इमरान के आने से पहले वो किसी और से ना टकरा जाए। इसकी छठी हिस्स कह रही थी कि इस माइक्रो टेप की कोई खास सरकारी अहमियत जरूर है और हो सकता है कि सर सुल्तान को इसी टेप के लिए ही अगवा किया गया हो। फिर एक ख्याल आते ही इसने टेप अपनी जेब से निकाली और उसे अलमारी के नीचे बने हुए एक खुफिया खाने में रख दिया ताकि अगर कोई गड़बड़ हो भी जाए तो कम से कम टेप महफूज रह सके। इमरान जैसे ही दानिश मंजिल पहुंचा, ब्लैक जीरो ने इसे टाइगर के फोन के मुतालिक बता दिया और इमरान सर सुल्तान के इस तरह अगवा किए जाने पर चौंक पड़ा। इसके जहन में फौरन इस्पार्क का ख्याल आया और कि कहीं ये इसका चक्कर तो नहीं, लेकिन इस्पार्क को होटल के कमरे से निकले हुए ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा गुजरा होगा, जबकि टाइगर का फोन 10-12 मिनट कबल आया था। तुमने सदर मुमलिकत को इसकी इत्तला दे दी है? इमरान संजीदा लहजे में पूछा। जी हाँ, मैंने सबसे पहले इन्हें इत्तला दी है। इन्होंने बताया है कि सर सुल्तान इनसे मिलने के लिए ही आ रहे थे और इन्होंने आने से पहले फोन पर कहा था कि इनके नोटिस में एक अहम तरीन बात आई है, मुल्क के खिलाफ खतरनाक तरीन साजिश, और वो इस बार इसकी तफसीलात सदर मुमलिकत को बताने चाह रहे थे कि रास्ते में ये हादसा पेश आ गया। हो न हो इसका मतलब है कि साजिश की जड़ें बेहद गहरी हैं और वो साजिश इतनी अहम और खतरनाक है कि सर सुल्तान ने हमसे पहले उसे सदर मुमलिकत के नोटिस में लाना जरूरी समझा, वरना आमतौर पर ऐसी इत्तलात वो बराह रास्त हम तक पहुंचा देते हैं। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में सर हिलाते हुए कहा और फिर इमरान ने फोन अपनी तरफ खींचा और रिसीवर उठाकर टाइगर के होटल फोन करने में मसरूफ हो गया। क्योंकि ब्लैक जीरो ने उसे बताया था कि इसने टाइगर को वापस होटल जाने की हिदायत की है और फिर नंबर पूरे होते ही दूसरी तरफ से रिसीवर उठाया गया। इमरान ने टाइगर को वहीं रहने की हिदायत और खुद आने का कहा और फिर रिसीवर रख दिया। मैं टाइगर के पास जा रहा हूँ, हो सकता है इससे कोई अहम क्लू मिल जाए। हमें फौरन सर सुल्तान को बरामद कराना है। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। तुम सब मेंबर्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दो। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ठीक है, ब्लैक जीरो ने कहा और इमरान तेज तेज कदम उठाता हुआ ऑपरेशन रूम से बाहर निकलता चला गया। थोड़ी देर बाद इमरान की तेज कार तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई टाइगर के होटल की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। टाइगर होटल शेबरोज में मुस्तकिल तौर पर रहता था, इसलिए इसका कमरा नंबर मालूम था। होटल शेबरोज की पार्किंग में कार रोककर वो मेन गेट से होता हुआ लिफ्ट के जरिए होटल की दूसरी मंजिल पर जहां टाइगर का कमरा था पहुंच गया। टाइगर के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। इमरान ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से टाइगर की आवाज सुनाई थी। दरवाजा खोला टाइगर, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुल गया और इमरान अंदर दाखिल हो गया। टाइगर ने इमरान के अंदर आते ही दोबारा चुपखनी चढ़ा दी। हाँ, अब पूरी तफसीलात जल्दी से बताओ, कोई बात भी रहने ना पाए। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इस वक्त इसके चेहरे पर इतनी गहरी संजीदगी तारी थी कि टाइगर इसके चेहरे को देखकर ही झुरझुरी आ गई और फिर इसने पूरी तफसील से तमाम वाकयात बता दिए। टेप का जिक्र सुनकर इमरान चौंक पड़ा और फिर टाइगर ने टेप अलमारी के खुफिया खाने से निकालकर इमरान के हवाले कर दी। तुमने इसका जिक्र एक्स्ट्रा से तो नहीं किया था? इमरान ने माइक्रो टेप को गौर से देखते हुए कहा। मैंने सोचा था कि हो सकता है कि इसकी कोई अहमियत न हो और मुझे ख्वामोख्वाह शर्मिंदा होना पड़े। टाइगर ने जवाब दिया। टेप रिकॉर्ड है तुम्हारे पास? इमरान ने पूछा। जी हाँ, टाइगर ने कहा और अलमारी खोलकर इसमें से एक जदीद तरीन टेप रिकॉर्डर निकालकर इमरान के सामने मेज पर रख दिया। तुम बाहर जाओ, थोड़ी देर बाद आना। हो सकता है इस टेप में कोई ऐसा सरकारी राज हो जो टॉप सीक्रेट हो। इमरान संजीदा लहजे में कहा। यस सर, इसीलिए मैंने इसे नहीं सुना। टाइगर ने इसे हिलाते हुए कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इमरान भी उठ खड़ा हुआ। टाइगर के बाहर जाने के बाद इमरान ने चुटखनी दोबारा चढ़ाई और आकर टेप रिकॉर्ड में टेप फिट की और आवाज हल्की करके इसे ऑन कर दिया। टेप चलना शुरू हो गया और फिर जैसे जैसे इमरान टेप सुनता चला गया, इसकी आंखें हैरत से फटती चली गईं। इसके जिस्म में सर्दी की लहरें दौड़ने लगी। पाकेशिया के खिलाफ इस कदर खौफनाक मुसीबत का तो वो तस्वुर भी नहीं कर सकता था। टेप खत्म होने पर इमरान ने एक तवील सांस लेकर टेप रिकॉर्ड बंद किया और टेप बाहर निकालकर जेब में डाल ली। इसकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी और पेशानी पर हजारों शिकने उभर आई थी। ये बात तो वो समझ गया था कि सर सुल्तान इस साजिश के मुतालिक सदर से मिलने जा रहे थे, लेकिन ये टेप इन तक कैसे पहुंचा, ये बात अभी राज थी। बहरहाल अब ये बात वाज़ेह हो गई थी कि सर सुल्तान को सनी टेक्नोलॉजी के लिए अगवा किया गया है और यकीनन मुजरिम इन पर खौफनाक तशद्दुद करने में से भी गुरेज नहीं करेंगे। और अब स्पार्क की भी इस मुल्क में मौजूदगी की वजह जाहिर हो गई थी। स्पार्क इस मीटिंग में भी मौजूद था और जाहिर है वो सर सुल्तान का अगवा करने के मिशन पर आया हुआ है और यकीनन इसके आदमियों ने सर सुल्तान को घेरा होगा और अगवा किया है।
इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई और टाइगर की आवाज सुनाई दी और इमरान ने उठकर चुटखनी गिराकर दरवाजा खोल दिया। टाइगर से सुल्तान की फौरी बरामदी इंतहाई जरूरी है। कोई क्लू जो तुम्हारे दिमाग में हो? इमरान का लहजा पहले से भी ज्यादा संजीदा था। सर, गो सर, सुल्तान को अगवा करके लिए जाने वाली दोनों कारों को मैंने दूर से देखा है, लेकिन इनमें से एक कार को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो लकी बार के मशहूर गुंडे प्राइड की है और प्राइड ऐसे कामों में बेहद माहिर समझा जाता है और इस कार को वो सिर्फ जाती इस्तेमाल में रखता है, इसलिए मुझे यकीन है कि प्राइड का इस वारदात में अहम हिस्सा है। टाइगर ने जवाब दिया। कार में ऐसी कौन सी बात है जिससे तुमने इसे इतनी दूर से भी पहचान लिया? इमरान ने चौंक कर पूछा। जनाब, ये कार स्पोर्ट मॉडल की ब्लैक की है और इसमें एक खुसूसियत ऐसी है कि इसका पत्ता दूर से भी जल जाता है। प्राइड ने इसके आगे पीछे के दोनों बम्परों को मुख्तलिफ रंगों के टुकड़ों से सजाया हुआ है और इन रंगों पर फास्फोरस की तेज चढ़ाई हुई है और रात को भी हर रंग दूर से चमकता है। बहरहाल दिन के वक्त तो इसे दूर से पहचाना जा सकता था। टाइगर ने जवाब दिया। बिल्कुल ठीक, मैंने भी वो कार देखी हुई है। यकीनन प्राइड इस वारदात में मुलव्विस है। आओ मेरे साथ, हमें फौरन प्राइड पर हाथ डालना चाहिए। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। जनाब, प्राइड लकी बार में नहीं मिलेगा। वो दिन के वक्त बार में रहता है। वो दिन के वक्त बार में नहीं जाता, बल्कि इसने ये खुफिया जुआ खाने बनाया हुआ है। वो दिन को वहीं रहता है और इस जुआ खाने में इसके बेशुमार मुसल्लह गुंडे हर वक्त मौजूद रहते हैं। टाइगर ने उठते ही हुए कहा। कहाँ है वो जुआ खाना? कहाँ है वो जुआ खाना? इमरान ने चौंक कर पूछा। कमर्शियल प्लाजा के तहखानों में जनाब, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारे पास मेकअप का सामान है? इमरान ने अचानक पूछा। जी हाँ, मुकम्मल सेट है, टाइगर ने सहलाते हुए जवाब दिया। लाओ, वो मुझे पहचानता है, इसलिए मैं एक गुंडे के मेकअप में इससे मिलना चाहता हूँ, वरना वो मर जाएगा, लेकिन मेरे सामने जबान नहीं खोलेगा, इमरान ने कहा। और टाइगर ने अलमारी के खुफिया खाने से एक बड़ा सा बॉक्स निकालकर इमरान के सामने रख दिया और इमरान बॉक्स उठाए गुसल खाने में चला गया। थोड़ी देर बाद इमरान बाहर आया तो टाइगर भी उसे देखकर चौंक पड़ा। वो वाकई खतरनाक तरीन गुंडे के रूप में था। चेहरे पर जख्मों के बेशुमार निशानात, आंखों में छाई हुई वहशत की सुर्खी से इसे एक खौफनाक गुंडे का रूप दे दिया था। इमरान ने लिबास भी बदल लिया था। अब उसने खंजर अब उसने जीन्स के ऊपर फूलदार शर्ट पहन रखी थी, गले में सुर्ख रंग का रुमाल बांधा हुआ था और ग्रेबान के बटन खोले हुए थे, जो कि इमरान और टाइगर का कदामत एक जैसा था, इसलिए टाइगर का लिबास उस पर फिट आ जाता था। तुम भी हल्का सा मेकअप कर लो, मगर जल्दी, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा और टाइगर सहलाता हुआ गुसलखाने में घुस गया। थोड़ी देर बाद जब टाइगर गुसलखाने से बाहर आया तो वो भी एक गुंडे के मेकअप में था। रिवॉल्वर और खंजर ले लो और चलो, इमरान ने कहा। मैंने ले ली है जनाब, टाइगर ने जवाब दिया। इमरान ने दरवाजे की तरफ चल पड़ा। इमरान के बाहर निकलने पर टाइगर ने दरवाजा लॉक किया और फिर वो पिछले रास्ते की तरफ बढ़ते चले गए। ये रास्ता पिछली गली में निकलता था, लेकिन इसके लिए सीढ़ियां उतरनी पड़ती थी। बहरहाल दो मंजिलों की सीढ़ियां उतरना इनके लिए कोई मसला न था, इसलिए चंद ही लम्हों में वो गली में पहुंच गए। गली से होते हुए वो सड़क पर पहुंचे तो इमरान ने जेब से चाबियां निकालकर टाइगर को देकर वो कार पार्किंग से लेकर यहाँ पहुंच जाए। टाइगर चाबियां संभाल कर आगे बढ़ गया और इमरान गली में ही दीवार के साथ पुष्ट लगाकर खड़ा हो गया। इसका जहन बार बार टेप में मौजूद साजिश की तरफ जा रहा था, इंतहाई खौफनाक साजिश, और उसे यकीन था कि ये दोनों मुल्क यकीनन इस साजिश पर अमल दरामद करने से बाज नहीं आएंगे और पाकिस्तान के 10 करोड़ अफराद की तबाही इसे बार बार ये सोचकर ही फुर्रियां आ रही थी कि ये लोग कितने बड़े दरिंदे हैं जो 10 करोड़ मासूम और बेगुनाह लोगों को कत्ल करके मंसूबे इस ठंडे दिल से बना रहे हैं, जैसे इंसानों के बजाय मक्खियां मारने का प्रोग्राम बनाया जा रहा हो। और फिर टाइगर के वापस आने तक वो दिल ही दिल में फैसला कर चुका था कि वो इन लोगों से ऐसा भरपूर इंतकाम लेगा कि आइंदा इन्हें किसी भी मुल्क के खिलाफ ऐसी साजिश करने की जरूरत तक न होगी और इन पर खुदा का कहर और दहशत बनकर टूटेगा। इसने दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया था कि इस मीटिंग में शरीक लोगों को कत्ल करके लोगों के कत्ल के साथ साथ इसे काफिरिस्तान के इस केमिकल तैयार करने वाले कारखाने और रूसिया के मसनूई इंसान बनाने वाले कारखानों का मुकम्मल सफाया करना होगा। इसने पहले कि वो लोग इन तजवीज पर अमल दरामद करें, वो इन्हें तबाह और बर्बाद कर देना चाहता था। वो दहशत बनकर इनके आसाब पर छा जाने का फैसला कर चुका था। इसीलिए इसी लम्हे अपनी कार का हॉर्न सुनकर वो चौंक पड़ा और वो
इन ख्यालात में ऐसा गुम हुआ था कि उसे एहसास तक न हुआ था कि टाइगर ने किस वक्त कार लॉक करके गली के सिरे पर रोकी है। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और कार का पिछला दरवाजा खोलकर बैठ गया। पहले दानिश मंजिल चलो जल्दी, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और टाइगर ने सहलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद टाइगर ने कार दानिश मंजिल के गेट पर रोक दी। इमरान कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और फिर इसने कॉल बेल का बटन मखसूस अंदाज में 4 बार मुख्तलिफ वक्फों से दबाया और इसके साथ ही फाटक की निचली खिड़की खुद ब खुद खुलती चली गई और इमरान अंदर चला गया। टाइगर बाहर कार में बैठा इंतजार करता रहा। वो इमरान का मुंह देखकर ही समझ गया था कि आज फ्लाइट की खैर नहीं है। 10 मिनट बाद इमरान गेट की निचली खिड़की से बाहर आया और कार में बैठते ही इसने टाइगर से मुखातिब होकर कहा, हाँ अब चलो कमर्शियल प्लाजा, मैं देखूं कि ये फ्लाइट क्या शे है। इमरान के लहजे में बेपनाह सख्ती थी। यहाँ हमारा पार्ट 5 इख्तिताम पजीर होता है। बकिया किताब सफर नंबर 111 से समाअत फरमाइए। शुक्रिया।